آج ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے پہلے جمعے کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پورا سال میں شعبان کے پہلے جمعے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے، شعبان کا پہلا جمعہ آئے، اور اس جمعے کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ یہ تسبیحات جو بندہ پڑھ لے گا، آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، اس دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ شعبان کا پہلا جمعہ بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، اگر یہ مبارک دن لاپرواہی سے گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ شعبان کے پہلے جمعے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی آپ کو اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، نصیب اور تقدیر کھلوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا پہلا جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا
पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल और ओमान, सऊदी अरेबिया, जहां से दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी शबान का पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। जब भी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशराक, किसी भी नमाज के बाद आपने ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन शबान के पहले जुम्मे के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल के मांगना है। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में जो आपको आपकी ज़ात है, जो नसीब हैं और तकदीर जो आपकी लिख दी गई है, रहमतें, बरकतें बारिशों के कतरों की तरह यकीन करें बरसेंगे। और जो बंदा झोलियां फैलाकर मांगता है और शबान का ये जो पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है, ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक सादत के लिए मांग रहे हैं, वो कई सालों से पूरी नहीं हो रही। वजीफा पढ़ पढ़ कर आप लोग थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लो। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देख लीजिएगा। इस तरह को पढ़ने वाले पूरे साल के फ़ायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियाँ झोलियों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसुकूनी है, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो मांग लो, मांगते चले जाओ। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। शाबान का पहला जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, शबानुल मुअज़्ज़म का महीना कमली वाले आका का महीना है। और कमली वाले आका के महीने में अगर आप लोग आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर आप लोग अगर दुरूद पाक पढ़ते हुए इस वजीफे को कर लेते हैं तो अल्लाह पाक जल्ला जलालुहु आपके लिए ऐसी ऐसी आसानियाँ फरमाएगा, ऐसी ऐसी जगहों से आपको रिस्क अता फरमाएगा। आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। वजीफ़ा इंतहाई आसान सा है, वजीफ़ा कोई इतना बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने ताउस और तस्मीहा पढ़ लेना है। जब भी आप लोग
ताउस और तस्मिया पढ़ लें 3 बार। उसके बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक कोई सा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, अगर आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, दुरूद खिजरी पढ़ना चाहते हैं, दुरूद कादरिया पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे 11 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जब आप लोग 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आप चाहते हैं, कर्ज़ों से निजात चाहते हैं, ला इलाज बीमारी के लिए इस वजीफ़े इस अमल को करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियाँ फरमा दे, आप अपनी मन पसंद की शादी चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी लड़की से या लड़के से जायज़ मोहब्बत में अगर आप लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उसके लिए आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं कि गुनाहों का खदशा है और आप मन पसंद की शादी चाहते हैं, तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े को बिलखसूस करना, क्योंकि ये अमल बड़ा मुजर्रब है। जिसने भी इस अमल को करा वो कामयाब होके रहा। ये वजीफ़ा आपको बेशुमार जो हैं परेशानियों से उनसे निजात अता फरमाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी जो भी परेशानियां हैं उनको मिनटों में इंशाअल्लाह हल फरमा देगा। और इस वजीफ़े की एक ख़ास बरकत ये भी है कि बिन मांगे अल्लाह पाक 3-4 चीज़ें तो उसे फ़ौरन अता फरमा देता है। एक वसअत रिज़्क़ उसको फ़ौरन मिल जाती है। अल्लाह पाक उसके नसीब में जो उसकी इज़्ज़त होती है उसको बढ़ा देता है, अपनी बारगाह में उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, क्योंकि ये ऐसे मुजर्रब कलिमात हैं। पहला वजीफ़ा, पहले नंबर पे जो आप लोगों ने पढ़ना है, या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह, या सलामु या अल्लाह। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। या सलामु या अल्लाह 1 हुआ, या सलामु या अल्लाह ये 2 हुए, या सलामु या अल्लाह ये 3 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने या सलामु या अल्लाह इसको पढ़ना शुरू कर देना है। और आपने कितनी बार इसका विर्द करना है और कितनी बार आप लोगों ने पढ़ना है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग मुलाहिज़ा कर लें, क्योंकि या सलामु या अल्लाह ये 1 हुआ, या सलामु या अल्लाह ये 2 हुए। इस तरीके से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 9 बार आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर गिन कर पढ़ना है। कम या ज़्यादा मत करिएगा, जो आपको तादाद बताई गई उसके मुताबिक आप लोगों ने इस वजीफ़े को कर लेना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने या सलामु या अल्लाह को 9 बार पढ़ लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, ये मोमिनों का मेराज है। ये मोमिनों की जो मेराज है ना, ये कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह पाक की रबूबियत का इकरार है। अल्लाह पाक जब भी इन कलेमात को किसी के मुंह से सुनता है तो उसकी रहमतें जो है फ़ौरन मुतवज्जो हो जाती हैं और 300 बरकत के दरवाज़े फौरी तौर पे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। क्योंकि जब कोई काफिर भी ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह पाक उस पर सबसे बड़ा इनाम ये फरमाते हैं कि फौरी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देते हैं और फौरी तौर पर उसको दारे इस्लाम में दाखिला मिल जाता है और फौरी तौर पर अल्लाह पाक उसको अपने करीब कर लेता है। और अगर अल्लाह पाक काफिरों पर इतना मेहरबान हो जाए जिन्होंने सारी ज़िंदगी शिर्क में गुजार दी, अल्लाह पाक फौरी तौर पर राज़ी हो जाए जब वो सच्चे दिल से कलमा शरीफ पढ़े, तो क्यों आप लोग एक तस्बीह पढ़ें और आपको कुछ ना मिले? ये कैसे हो सकता है? ये वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन जब आप लोग करेंगे, आप लोग सोच नहीं सकते कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको किस तरह से अता करेगी। अल्लाह पाक की ज़ात तो हमेशा ही अता करने के लिए हर वक़्त तैयार रहती है। ये हमारी ही गफलत है, ये हमारी ही जो है वो कम फहमी है कि हम लोग अल्लाह पाक से मांगते नहीं हैं। हम लोग ज़ाहिरी असबाब पर जो है वो ध्यान करते हैं। हम लोग अल्लाह पाक से
लो लगानी हम लोगों ने बंद कर दी है और हम लोग सिर्फ हर चीज़ अपनी कुव्वत बाजू पर चाहते हैं और हम लोग अपने दिमाग को भी बहुत अच्छा समझते हैं। हम लोगों की सोच ये हो गई है कि अल्लाह पाक हमें अता करेगा, अल्लाह पाक हमें देगा, लेकिन उसमें जो महारत होगी वो मेरी होगी, उसमें जो मेहनत होगी वो मेरी होगी। हालांकि इंसान की सोच तो ये होनी चाहिए थी कि मैं सिर्फ अपना काम करूँगा, बस मेहनत करूँगा, अल्लाह पाक से दुआ करूँगा और रिज़्क जो है वो अल्लाह पाक ही अता करेगा। दोस्तों, इसकी छोटी सी मिसाल यूँ भी दी जाती है कि बज़ाहिर इंसान सब कुछ करता है और करने के बाद वो सजदे में सर रख देता है और कहता है सुभान रब्बियल आला, कि मैं तो पस्त हूँ, आला तू है। और वो ये बात भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी कि ज़ाहिरी असबाब पर उसकी कोई तवज्जो नहीं जाती। वो 100% क्रेडिट जो है वो अल्लाह पाक को दे देता है। तो जब अल्लाह पाक को 100% क्रेडिट दे दिया जाए तो अल्लाह पाक भी आपको 100% कामयाबियाँ अता फरमा देता है। इसलिए मैंने आपको कहा ये वजीफ़ा 100% कामयाबी की तरफ ले जाने वाला अमल है। और इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन, शबानुल मुअज़्ज़म का पहले जुम्मे के दिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग इसकी तासीर खुद अपनी जागती हुई आंखों से देखेंगे। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको वो मोजज़ात वो दिखाएगा जो देखकर आपकी अक्लें भी दंग रह जाएंगी। अल्लाह पाक उन चीज़ों से आपको हमकिनार फरमाएगा जो आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मांगने का वक्त है। कमली वाले आका का महीना हम सब के दरमियान है और तेज़ी से गुजर रहा है। ये 5 शबान का बड़ा मुजर्रब अमल है और अगर आप लोग इस वजीफ़े को बाकी दिनों में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन बिलखसूस आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना है। तो आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या पढ़ा? या सलाम या अल्लाह 9 बार। फिर आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी एक पूरी तस्बीह पढ़ ली। अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम और नबी पाक का ज़ाती नाम, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, एक तस्बीह आप लोगों ने इसकी पढ़ लेनी है, या अल्लाह या मोहम्मद की। जब आप लोग एक तस्बीह या अल्लाह या मोहब्बत की पढ़ लें तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? बहुत मुजर्रब कलिमात हैं। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ए असबाबों के पैदा करने वाले, ए असबाब बनाने वाले। तो या मुसब्बिबल असबाब को आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब पढ़ देना है। दोस्तों, ये करामती तस्बीह है, ये जादुई तस्बीह है और ये अमल पिछले साल भी बताया गया है। और जिन लोगों ने इस अमल को किया तो उनकी ज़िंदगी में जो इनकलाब आया आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये वजीफ़ा इंतहाई मुस्तनद है। अगर आप लोग बग़ैर वसवसों के अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को करोगे तो यकीन मानो आपके बड़े बड़े मसले, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़े बड़े आपके मामलात चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको यकीन करें हज़ारों रहमतों के कतरों के अंदर समेट लेगा और आपकी ज़िंदगियों को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। आप शाबान के पहले जुम्मे के दिन जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो आप लोग बेशक पढ़ सकते हैं, जो आप लोग अमल करते हैं वो आप बेशक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल भी आप लोगों ने आज के दिन कर लेना है। इंशाअल्लाह लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। इंशाअल्लाह आज के दिन आप लोग भी इस तस्बीह से फ़ायदा उठाएंगे, मेरी इस मेहनत को आप लोग वसूल करवाएंगे। हरगिज़ भी इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, हरगिज़ भी इस वॉइस को जो मैंने आपके आगे बयान करी, एक दर्ज दिया और आपकी खिदमत में मुकम्मल तरीके से आपको हर एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बेइंतहा की समझ आ चुकी होगी। और जब आप लोग या मुसब्बिबल असबाब पढ़ ले उसके बाद आप लोगों ने दोबारा दुरूद पाक पढ़ लेना है। वजीफ़ा और अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांग लेनी है। आप लोग एक पर्चा बना लें, जो आपकी हाजातें हैं वो उस पर लिख लें। यकीन करें अल्लाह पाक की बारगाह में वो पर्चा पेश कर दें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह पाक आपको उस पर्चे में जो लिखा हुआ होगा आप लोग वो अपनी ज़िंदगियों में होता हुआ खुद देखेंगे। लिखवाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों के समझ में आए कि आप लोग कौन सा वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और मांग किस ज़ात से रहे हैं।
तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारी सोच तो बहुत छोटी है। हम तो सिर्फ गाड़ी बंगले में खुश हो जाते हैं। वो रब है जो हमें हर चीज़ अता फरमाने वाला है, जिसका वादा बड़ा सच्चा है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जुम्मे का दिन सरदार दिन है और ये शाबान का पहला जुम्मा है। तो ये घड़ियां जो हैं वो अगले साल ही नसीब होंगी। तो अगर आप लोग आज कुछ वक्त निकाल के, आज थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ा सा अपने आप को मुशक्क़त में डाल के आप लोग इस वजीफे को करें, दोस्तों को बताएं और दूसरे जो आपकी अहम कोलीग्स हैं उनको बताएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएगा। और दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी फरमाएगा। दोस्तों, हमारे दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। जो लोग भी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं, 101 बार दुरूद पाक पढ़ के अपना मसला लिख के कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ की जाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। और दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।